एंड में जब पता Please. हाईवे चेज हो रहा होता है, तब वो रैंडम ग्लव बॉक्सेस खोलते हैं टू फाइंड अ गन, एंड एक पिंक बेंटली में मिलती है गन उसको. And Rocky comes and says, your ship is ready. And he's like, I need to think about it. And Rocky says, take as much time as you want. Stay as long as you want. There is no rush. The movie I want to talk about, there is one rule about that movie that you don't talk about it. So, जो लोगों ने देखी होगी वो लोग समझ चुके होंगे. It's obviously Fight Club. यस यस, सोहेल खान, अश्मित पटेल, सुनील शेट्टी. Yes, that one, not Brad Pitt वाला. नहीं 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 नहीं. Brad Pitt and Edward Norton वाला Fight Club was okay. ये सोहेल खान वाला Fight Club was peak. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द कॉमिक रिलीव्स. मेरा नाम है चिराग चरणिया, And मेरा नाम है हितेश पृथ्वी. एंड ये वीक के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम लाए हैं द टॉपिक एब्सोल्यूट सिनेमा. ये एपिसोड बेसिकली इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स, कि हम इतना सुपर हीरोज पे फोकस नहीं करने वाले हैं. शाउट आउट टू द पीपल हु टोल्ड मी कि सुपर हीरो कंटेंट छोड़ के भी और थोड़ा कंटेंट पे फोकस Content करो. बना. यस. Not everyone watches only superhero movies. यस, सो यू नो हु यू आर, प्लीज कमेंट. सो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज एवरीवन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस टू दिस वीडियो. आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है प्रीवियस एपिसोड्स में, एंड इफ यू हैव नॉट checked out the review that we did of Daredevil Born Again season 2, please check that out. We are doing a completely new series every week, so that is a part of that series. So let's get started with this episode. So before starting, मैं थोड़ा ये format explain करता हूँ कैसा है. So we have selected 5 genres uh, that we like, and उस पे से हम एक एक personal favorite movies discuss करेंगे, ठीक है? So first genre that is, I think, both near and dear to our heart is the action genre, right? Everyone. Because as boys, we love action a lot. Yeah. Yeah. So take it away. So if I'll have to start with one action movie, so I'll go with Extraction by Chris Hemsworth. Okay. There has been more iconic action movies over the years, but I specifically like Extraction because of the action choreography was way too good. The movie was not a big scale movie. It was not a big budget movie. ज़्यादा VFX scene and all नहीं थे उसमें. It was all raw action, which जो मुझे actually personally ज़्यादा raw action, raw hand to hand combats and वैसे scenes ज़्यादा पसंद है. Obviously, as per action movies, थोड़ा overboard तो हर कोई जाता ही है कि one guy fighting everyone. But Hmm. specifically the way it was designed, the way it was choreographed, and Chris Hemsworth, Oh, uh, I, was I good. I like that actor a lot. Chris Hemsworth pulled it out very good. Hmm. So yeah, if I'll have to choose with any movie, so मेरे mind में lately Extraction ही आता है. Hmm. I love that movie, specifically that scene, जब Chris Hemsworth का entry है and he just wakes up, he takes a sip of a beer and then he jumps Yeah. and then, वो water body में नीचे जाके बैठा हुआ है वो, like small small key moments. Yeah, because of that I love that movie. So I'll go with Extraction. Yeah. एक्सट्रैक्शन मैंने ना बहुत पहले देखी थी जब रिलीज हुई थी ना. आई थिंक इट वाज डायरेक्ट नेटफ्लिक्स मूवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah. It was a राइट. Netflix movie. It came during pandemic 2020 में आई थी. राइट 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 राइट. देखने को था नहीं, थिएटर्स बंद थे एंड नेटफ्लिक्स पे इट केम. हम्म. यार मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. एज यू प्रीवियसली मेंशन, स्टोरी वाज अ लीनियर स्टोरी, बट Yeah, it was not a big budget या movie. एक्शन यार उसका वो वनर है ना, इट इज टू गुड. वो कितना, वो टाइम पे तो रिकॉर्ड सेट किया था ना वो वन टेक सीक्वेंस ने. Yes, क्रिस हेम्सवर्थ ऐसा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऐसा सूट होता है प्रॉपर, पता है उसकी बॉडी है, proper. पर्सनालिटी है. और एक्शन एंड कॉम्बैट इतने नहीं किए थे उसने एक्सट्रैक्शन से पहले. राइट. लाइक ही डिड एक्शन मूवीज, चलो कॉमिक्स में अगर थॉर का पकड़ ले, बट नॉट नॉट हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स वैसे नहीं थे उसके जैसे ही शोड इन एक्सट्रैक्शन. उससे पहले 12 स्ट्रांग आई थी उसकी, उसमें काफी अच्छे सीन्स थे. आई लाइक दैट एज वेल, बट एक्सट्रैक्शन वाज लाइक क्लास अपार्ट इन हैंड एक्शन कोरियोग्राफी.
यस यस यस, अरे फॉर श्योर, मुझे ना बहुत पसंद है एक्सट्रैक्शन एज अ मूवी ना. Sam Hargreaves, if I'm not wrong, is the director of the movie, Yes. and he pulled off the entire action genre. This is what an action movie is supposed to be. Good story, yeah, decent enough story, but kick-ass action. So Action. yeah, I love Extraction. मैं बात करूँ अगर पर्सनली एक्शन मूवी की, तो one of my favorite movies growing up was a little known movie that you might have heard called Die Hard. Uh, Classic movie. Absolute classic. You can call it an action movie, you can call it a Christmas movie, you Christmas can. movie. Bruce Willis is such a good actor यार. वो मतलब वो मूवी के बारे में तो कितना ही बात कर ले यार हम. You know, lately he's so bad that one of the biggest star ever on this या planet doesn't even remember who he is. Like definitely one of the biggest star ever. एवर एवर या एंड मैं एक थोड़ा पर्सनल स्टोरी बताता हूँ ये मूवी के बारे में. सो ऑब्वियसली जब मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी तब मैंने नहीं देखी थी, बट लास्ट टू लास्ट ईयर उसकी कोई तो एनिवर्सरी थी, एंड तब थिएटर में रिलीज हुई थी, एंड मैंने तब थिएटर में देखी थी मूवी. मजा आ गया था पता है, विद द न्यू डॉल्बी साउंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग ना. वो पूरा थिएटर हिल रहा था जब एंड में, जब व्हेन ही शूट्स हिज गन राइट, द एंटायर थिएटर वाज वाइब्रेटिंग. आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग. एक्शन वाइज क्या ही बोले ये मूवी के बारे में. इट इज a cozy, it starts as a cozy Christmas movie, it ends up being something else. Too good. And Die Hard की बात करें तो उसका विलन, भाई व्हाट एन एक्टर यार. वो जब पता है एक एक पर्टिकुलर सीन है उसमें जिसमें ही प्रिटेंड्स दैट ही इज वन ऑफ द हॉस्टेज, एंड Hostage. एकदम he's like scared to act anything in front of Bruce Willis. Oh, too good. John McClane is the man. वो मूवीज में इतने अच्छे अच्छे सीन्स है लाइक ऑल आउट एक्शन एंड व्हेन ही इज हाइडिंग ही इज चेंजिंग फ्रॉम रूम टू रूम वो बिल्डिंग में टू गेट देयर Yeah, मतलब छोटे छोटे सीन्स भी उसके इतने इम्पैक्टफुल है yeah. उसका एक साइड कैरेक्टर है ऑफिसर पावेल, द गाय हु इज इन अ कार, पुलिस ऑफिसर हु इज इन अ कार. या वो भी मस्त कैरेक्टर है. बहुत अच्छा actor है। या डाई हार्ड्स 2 अच्छा था, 2 भी अच्छा लगा था. 3 वाज ओके, 4 के बाद दे गिव अप. हर सीरीज का वैसा ही होता है आफ्टर आफ्टर टाइम दे जस्ट कीप ऑन मेकिंग इट टू या ग्रैब मनी स्टोरी एग्जैक्टली. खत्म हो चुका है एक्शन सेम हो चुका है द सेम थिंग हैपेंड विद एक्सपेंडेबल्स ओ या. इतने इट जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग वर्स एंड वर्स बट इट केप्ट ऑन अर्निंग तो एक्शन मूवीज के सीक्वेंस का यही है बट even like even if you see Mission Impossible 1 to 3 good 4 okay 5 good then the chart for action movies are never constant because यस, the same action feels repetitive for audience. ट्रू. नेक्स्ट जॉनरा जाएंगे, which again is one of the most iconic genres in cinema history, is comedy. My favorite genre, by the way. Same. And personally, making a comedy movie is the most difficult job. Oscars पता नहीं क्यों हमेशा कॉमेडी मूवी को साइडलाइन करते हैं कॉमेडी एक्टर्स को साइडलाइन करते हैं बट comedy movie and comedy actors who are performing comedy is the most difficult because you have to have a proper timing to make people laugh. It's not easy. It's not easy यार. Comedy actors deserve much more respect. Jim Carrey should have won an Oscar in his life. I don't know why he didn't, वो but didn't it he win for Eternal no, no, the नहीं. Truman Show. No, no, he didn't win for the Truman Show or the Eternal Sunshine of Spotless. Oh, For the Eternal Sunshine of Spotless Mind, he was not even nominated, which was a very oh my god. And for the Truman Show, he definitely deserved it. That movie was something else. something else. Yeah. So कॉमेडी की बात करें तो मेरा ना एक बहुत पर्सनल फेवरेट मूवी अगेन इज द हैंगओवर. ओके. It is so funny. The first part, right? First part. Yeah. Nothing like that has come after that. The first Yes. part, okay. उसमें तीनों एक्टर्स की केमिस्ट्री, आई मीन दैट इज, तीनों नहीं एक्चुअली चारों की केमिस्ट्री बोल सकते हैं. इवन, Chemistry. इवन द गाय हु गेट्स लॉस्ट ऑन द रूफ, जिसके ऊपर पूरी पिक्चर बनी है, उन चारों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. जैक गिलिफिनाकिस, भाई क्या एक्टर है यार वो. Yeah. He came into limelight after that role.
एंड क्या एक्टिंग की उसने। उसके ना इतने इतने फनी सीन्स है ना, कि वो आइकॉनिक सीन जब वो सब उठते हैं फर्स्ट टाइम, एंड देयर इज अ टाइगर इन द बाथरूम, देयर इज अ माइक स्मॉल वाला सीन। माइक टाइसन वाला सीन, I ओ guess माय we can गॉड। dominate here tonight. Oh Lord, that's I love that scene. उन चारों, अगर तुम हैंगओवर सीरीज पकड़ोगे तो चारों की केमिस्ट्री में दैट द पर्सन हु गेट्स लॉस्ट नहीं आता है, चाओ आता है, बिकॉज चाओ इज एक्चुअली द गुड गाय ऑलवेज। यस, चाओ इज सच अ यूनिक कैरेक्टर, पता है कि ऐसा नहीं मिलेगा तुमको किधर भी और। इधर भी। और एंड हैंगओवर 1 में चाओ का इतना बड़ा रोल नहीं था, बट हम्म। द वे पीपल लव्ड हिम, हैंगओवर 2 एंड हैंगओवर 3, तो हैंगओवर 3 में तो इट वाज ऑल चाओ। हैंगओवर 3 मुझे हैंगओवर 3 हैंगर 3 मुझे याद है, इट वाज अ बैड मूवी, ठीक है, इट वाज नॉट एज बैड गुड एज द मूवी। फर्स्ट वन, बट मुझे एक सीन याद है, जैसे वायर कट करना होता है, रेड ब्लू हाँ, ग्रीन। I have dark gray, light gray. And also I love Hangover 3 का वो सीन when जब ब्रैडली कूपर पहुंचता है उसके होटल में and he's standing on the wall with the parachute and he's like I am invisible. It's invincible and no you are not that. वो सीन भी like 2 and 3 में तो चाओ का impact बहुत ज्यादा था. हाँ, फर्स्ट में ही इज जस्ट अ गैंगस्टर, ही इज जस्ट अ फनी गैंगस्टर, बट But even for the small role, he did his part so well that people wanted him more, and the director and the writer saw it, and 2 or 3 में और बहुत ज्यादा डाला चाव का. या आई वाज लाइक सरप्राइज्ड टू सी ब्रैडली कूपर हैव सच अ गुड कॉमिक टाइमिंग, राइट? जनरली यू डोंट एसोसिएट हिम विद कॉमेडी रोल्स, ये मूवी के बाद उसका परसेप्शन चेंज हो गया। For me, I'll go with both the movies, 21st and 22nd Jump Street. I love that movie. I When I was in college, it came out. Me and my friends went in theater, and I just love that movie. Jonah Hill and Channing Tatum का comic timing, the chemistry, everything. मतलब उस वो मूवी में इतने छोटे छोटे इतने amazing moments है ना. Like the iconic moment is 22nd Jump Street. My name is Jeff, which went so viral. या माय नेम जेफ, ओ माय गॉड। फर्स्ट पार्ट में And भी फर्स्ट पार्ट में बहुत अंडररेटेड सीन है, पता है, एंड में जब पता see, है हाईवे चेज हो रहा होता है, तब वो रैंडम ग्लव बॉक्सेस खोलते हैं टू फाइंड अ गन, एंड एक पिंक बेंटली में मिलती है गन उसको। और Ice Cube का role in both the movies. स्पेशली इन द सेकंड वन, You really find out when वो जो जाता है कॉलेज में फर्स्ट टाइम अपने जाता है। college में पहुंचता है and we find out that he's the guy. ओ माय गॉड, वो इतना No, दोनों मूवी ऐसे है कि when you discuss about 21st और 22nd Jump Street ना you feel like चलो लगा लेता हूँ यार, हाँ वापस देख यार, लेता हूँ. सच्ची में उसका रिपीट वैल्यू बहुत है दोनों मूवीज का। बहुत वैल्यू दोनों या मूवी का. जोना हिल इज सच अ गुड एक्टर, पता है, वेरी गुड. मतलब ही इज सो एफर्टलेसली फनी कि अ, उसकी कोई भी मूवी उठा लो, सुपर बैड उठा लो, जंप स्ट्रीट सीरीज उठा लो, सुपर इवन बैड. सुपर बैड. अमेजिंग मूवी. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट उठा लो, उसका इतना एफर्टलेसली फनी रोल है ना उसका। एंड अगेन सेम पॉइंट जो ब्रैडली कूपर के लिए बोला था मैंने, कि आई डेंट नो कि ही कुड पुल ऑफ अ कॉमेडी रोल, चैनिंग टेटम मेरे लिए ये मूवी में था। आई थिंक दे आर, उसके डायरेक्टर ये है ना अपने स्पाइडर वर्स वाले, फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर, राइट? नो आइडिया. I think they're the same people who directed the both the Spider-Verse movies and even the latest Project Hail Mary. ओह, Yeah, नाउ yeah. दिस इज शॉकिंग. ये तीन इतने डिफरेंट जॉनर के मूवी उन्होंने डायरेक्ट किए. Amazing guys. Yes. अमेजिंग है. So comedy से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, next genre I want to talk about is science fiction. Science fiction के बारे में क्या कहना है आपका? So sci-fi में, if I want to talk about one movie, that Hmm. would be a recent movie. But my favorite in sci-fi has always been the Star Wars series. I love Star Wars. मैंने बचपन से सारे parts देखे हैं. But if sci-fi is lately, I want to talk about Project Hail Mary Hmm. because I was so awestruck with that movie. I was so in love with that movie that even if it is not my favorite movie, I want to talk about that movie Yeah, because कितना प्यारा movie बनाया था. It's exactly. just Ryan Gosling in the whole movie, and he has done an amazing job. Single-handedly उसने पूरा movie pull किया है. The visuals are amazing. Specifically वो जब they enter the Petrova line.
and the whole that red astrograph scene. Yeah, too इतना good. ज्यादा अच्छा होता है यार, the movie के visuals, the story is so good. Hmm. Right, sci-fi doesn't always have to be something like Star Wars or Star Trek, like aliens fighting and everything. It doesn't always have to be comic superhero related. It can be this, and it was so good. So A good. pure, proper, simple storyline. One actor doing everything. और कोई एक्टर ही नहीं है मूवी में पूरा टाइम, मतलब छोटे छोटे रोल के लिए है जब उसका फ्लैशबैक आता है. बट इफ यू सी 80% ऑफ टाइम इट्स जस्ट रायन गॉसलिंग अलोन acting with Rocky. Yeah, And such a good job he has done. I just love Project Hail Mary. too good. What Uh, about you? just as much of तूने अभी just recently Star Wars mention किया, right? Just a side question. Uh, who is your favorite Star Wars character? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Good, good, good option. मेरा डार्थ वेडर होगा यार, मतलब one of the most iconic villains ever. या सो स्टार वॉर्स पे अलग से बात करेंगे कभी तो एक फ्यूचर एपिसोड Yes. में, क्योंकि इतना डीप टॉपिक है ना वो. बट आई वांट आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट हिल मैरी रिसेंटली. सो जब मैंने देखा ना, आई हैड ऑलरेडी सीन द रिव्यूज ऑफ द मूवी कि इट इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, ये वो. आई डेंट बिलीव इट दैट मच. बट व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी ना, इट इज सच अ फील गुड मूवी. एंड जब वो सीन है ना, जब वो बोलता है कि रॉकी गिव्स ग्रेस इज फ्यूल, आई हैव वॉच्ड माई क्रू डाई, आई विल रीच Uh, होम 6 years लेट. मैं इतना इमोशनल हो गया था ना वो सीन के टाइम पे कि, exactly. एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन्ड, कि मेरे लिए ना CGI एंड VFX आर अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है. द प्लॉट एंड द स्टोरी इज कम ऑलवेज कम्स फर्स्ट. ये मूवी का प्लॉट इतना स्ट्रांग था ना कि ऑब्वियसली द CGI एलिवेटेड इट, राइट. बट प्लॉट Yes. इतना स्ट्रांग था ना, स्पेशली वो सीन, इट लिटरली ब्रोक माई हार्ट. पता है कि दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप मीन्स यार, मतलब That it means. इट इज सच अ फील And गुड he मूवी. was not able to find any friends on Earth for so many years, but he found a, a true friend over there. या. And the part where he decides to stay on Rocky's planet, and when he is on Earth and they're pushing him to go for the project, and he doesn't want to go, and they are giving him like you have very short time, like they give him some half an hour something to think about it, huh? And when at the end he's at sitting at Rocky's planet, and Rocky comes and says your ship is ready, and he's like I need to think about it, and Rocky says take as much time as you want, stay as long as you want, there is no rush. That shows he found something that he wasn't able to find on Earth. या. कितना कितना अच्छा था वो scene. बहुत मस्त है यार, मुझे प्रोजेक्ट हिल मेरी And the fact that he didn't want to go for this project. He knew that कि अगर वो नहीं जाएगा तो Earth in future will get destroyed, and he was fine with it. But he was ready to die to save Rocky. या. When he found out there is a leak हम्म. and the radiation will kill Rocky, he goes there to find या. Rocky. But या. he was fine dying for Rocky, but not for the whole planet. क्योंकि वो उसका कंसेप्ट पता है, पहले एस्टेब्लिश कर लिया था ना कि ही हैज नथिंग और नो वन ऑन अर्थ. He's a loner guy. हाँ. Was उसको जब रॉकी मिलता है, ही फाइंड्स अ फ्रेंड, अ कॉन्फिडेंट इन हिम. एंड उसमें जो अगेन एंडिंग इज टू गुड यार. आई वाज रियली शॉक्ड एट द पार्ट पता है, जिसमें उसको जबरदस्ती भेजते हैं. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. कि मैंने तो बुक या वुक पढ़ी नहीं है. आई वाज लाइक उसको वो ही विल मैंने बुक नहीं पढ़ी है तो इवन आई वाज थिंकिंग कि वो क्या बोलते हैं वो बहुत ना बोलेगा उसको फोर्स करेंगे प्रेशर करेंगे बट इट केम आउट कि नहीं उसको तो डाल दिया बेहोश करके इट वाज वो मतलब जब उसकी आंख खुली है ही वाज ऑलरेडी देयर या एग्जैक्टली. सो at the end the right decision because they were sure that he is the one who can save the planet and he did ही डिड. end up saving the planet. या. Not just his. He's ended up saving two planets. या. Sticking to the same tangent of sci-fi movies, the movie that I would like to talk about is Interstellar. Oh, Uh, Interstellar is one of the best movie I think ever made. ever made, yeah. Ever. या सो इंटरस्टेलर का मैं थोड़ा अगेन बैक स्टोरी बताता हूँ. मैंने जब मूवी देखी थी, अपन दोनों साथ में ही देखी थी मूवी. साथ में देखी थी हम या. दोनों साथ में गए थे एंड वो टाइम, ब्रोवेल्स ये ग्रोवल्स में देखी थी, करेक्ट. वो टाइम पे ना मुझे अच्छी लगी थी, बट आई माई माइंड वॉज नॉट ब्लोन. ठीक है, वो लेवल पे नहीं था, क्योंकि मैंने वो टाइम पे
I used to love Christopher Nolan and उसकी movies, the Dark Knight series, Inception, Memento. I used to love that guy. But Interstellar इतना personally hit नहीं किया था मुझे. Again, recently जब last year re-release हुआ था ना, I went to see that movie and uh, it hit me on another level. पता है? Uh, the scenes, पता है जब Mur is talking to his daughter and he starts crying. The docking scene, such a cool scene, and there was no plan B. Uh, Yeah, you plan one. मैट डेमन का कैमियो कितना इम्पैक्टफुल था. uh, सबकी Always एक्ट. the guy who is stuck somewhere and needs saving, Matt Damon. या इवन इन Always ऑडिसी. wants to come back home. Matt Damon का एक फिक्स रोल है, he wants to come back home. एंड उसके कुछ कुछ सीन्स की मैं बात करूँ कि वो एक एक क्रॉप डस्टर का सीन होता है जब लाइट आ रही होती है. Right, एंड yeah. उसमें टिमोथी शैलेमे भी है. मुझे अभी रिसेंटली मतलब जब रिलीज किया लाइक इसको देखा हुआ है किधर तो बाद में पता लगा वो ये तो यंग टिमोथी शैलेमे है. एंड Oh, so yeah, when he was a kid, ही वाज अ because he किड. was very young at that time. या He's या still young. स्टिल इज या. एंड फिर उसके बाद वो एक सीन पता है जिसमें स्टार्टिंग में व्हेन रैंडम ड्रोन कम्स टू देयर एरिया एंड दे चेज डाउन द ड्रोन. The farm, द उनका farm उसका बैकग्राउंड स्कोर है ना बाय हांस जिमर, इतना background. परफेक्शन. मतलब हांस जिमर इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से. उससे बेटर और कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है हॉलीवुड में. तो moving on from sci-fi, we will move on to the next genre, which is thriller by Michael Jackson. Just a joke. But yeah, thriller. Uh, thriller में तो बहुत सारी movies है, but my personal favorite is The Departed. Oh, यार क्या movie है यार. yeah. Scorsese is such a good director. Uh, DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen. क्या कास्ट है यार. जैक निकलसन द मेन गाय, उसको भूल ही गए, जैक निकलसन. That's awesome. उसमें दोनों की एक्टिंग. सो फॉर द पीपल हु हैव नॉट सीन दिस मूवी, वी वोंट स्पॉइल इट फॉर यू कि क्या होता है. प्लीज वॉच दिस मूवी बिकॉज ये मूवी मैं बेसिक प्रेमिस बताता हूँ कि डिकैप्रियोस कैरेक्टर एंड मैट डेमन्स कैरेक्टर are one is in the mafia and the other one is in the police, and they both go undercover in each other's domain. Good point. And Jack Nicholson is the leader of the mafia, Martin Sheen is the leader of the police, and the entire cat and mouse chase sequence that occurs is the entire story of Departed. Please watch this movie, I would suggest. What do you think about this movie? Amazing. It is a very deep movie, I feel, The Departed. And if anyone watches Departed, I'll just suggest don't watch it in parts, watch it in one go because Yeah, that movie requires you to see that movie in one go. yeah. And I would also just go blind. Don't read anything about it. Don't watch Just any watch video. Yes, just because go. वो मूवी में थोड़े थोड़े की सस्पेंस ऐसे है कि if you read about it, you won't enjoy that much. Yeah. या एंड आई लव मार्क वॉलबर्ग्स कैरेक्टर. पता है उस पे इतना छोटा सा कैरेक्टर है बट वो इतना इतना स्ट्रिक्ट दिखाया ना, पता है, बट वो ही इज ट्विस्टेड इन हिज ओन वे. तो Always. गुड. या. The movie I want to talk about, there is one rule about that movie that you don't talk about it. So जो लोग ने देखी होगी वो लोग समझ चुके होंगे. It's obviously Fight Club. यस यस, सोहेल खान, अश्मित पटेल, सुनील शेट्टी. Yes, that one, not Brad Pitt वाला. नहीं 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 नहीं. Brad Pitt and Edward Norton वाला Fight Club was okay. ये सोहेल खान वाला Fight Club was peak. मैंने पता है उसके बारे में, तो हिंदी वाला फाइट क्लब है तो उसके बारे में एक रिव्यू पढ़ा था किधर तो, कि इन दिस फाइट क्लब यू कैन टेल एवरीवन अबाउट फाइट क्लब, एंड if they did, more people would have watched that goddamn movie. Movie. Yeah. Yeah, कुछ कुछ चीजों का क्यों क्यों बॉलीवुड बिना मतलब ट्राई करता है पता नहीं. yeah. योर इंडियन फाइट क्लब बहुत अलग था बट स्टिल क्यों क्यों करते हो तुम ऐसा इंसल्ट हमारा इंटरनेशनली. Yeah, so Exactly. coming back to the actual Fight Club movie, dude, what a movie. मतलब
वो मूवी का एंड ही मतलब इतना क्रेजी है दैट तुम्हारा पूरा, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एंड क्या है, बिकॉज वो मूवी का एंड बता दिया तो पूरी मूवी तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी. बट इफ एनीवन हु हैजंट सीन इट, प्लीज गो एंड वॉच फाइट क्लब. एंड यू एक्चुअली कांट एक्सपेक्ट कि क्या होने वाला है एंड में. तुम जो सोच रहे हो सब गलत है. एंड द वे दे मेड इट, लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक वाओ वाओ वाओ. एंड द मोमेंट जो मैं बोल रहा हूँ एंड का, द प्लॉट्स गेट रिवील्ड, आई वाज लाइक, मैं मूवी पॉज कर दिया था. तो ऑब्वियसली मैंने मूवी थिएटर में नहीं देखी थी, मैंने घर पे देखी थी बिकॉज इट रिलीज अ लॉन्ग बैक अगो. एंड मैंने मूवी पॉज कर दिया एंड आई वाज थोड़ी देर के लिए आई वाज सिटिंग लाइक दिस कि वेट व्हाट. ये क्या हो गया. Please watch these two movies. People have not watched it. I Yes, think, ये all the movies we have discussed are amazing movie, but for people who love thriller genre, ये दो movies ऐसी है कि you have to watch it. yeah, true. Going to the next genre, I think आज का last genre होगा. I would like to talk about a biopic. Bio- Uh, Biopic, the word biopic, किसका किसका biopic आता है तेरे दिमाग में फर्स्ट ऐसा biopic नाम सुनता हो तो? So for personally, for me, my favorite biopic has always been भाग मिल्खा भाग. I just love that movie. वो movie इतनी अच्छी बनाई हुई है. The way फरहान अख्तर played the role. मैं मूवी एक्चुअली जब भी आई फील लो और जब भी आई फील लाइक कि अब थोड़ा मैं लेजी हो गया हूँ लाइफ में, आई नीड टू फील मोटिवेटेड, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई जस्ट वॉच दैट मूवी. एंड मेरा जैसे ही मूवी देखे खत्म होता है मेरा तो एटलीस्ट थोड़े मंथ्स के लिए तो आई स्टार्ट वर्किंग हार्ड, नॉट जस्ट फॉर माई वर्कआउट ऑन माई बॉडी, लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज दैट मूवी इज सो मोटिवेशनल. हाउ था स्मॉल किड, उसके बाद द वे ही बिकेम, he joined Indian Army, then he became a legend. Hmm. And I think Farhan Akhtar's best acting performance. Best acting performance for Akhtar. You know, just you can't map that performance with anyone else. Yeah. इतना अच्छा किया उस फरहान अख्तर ने रोल. Hmm. एंड फिजिक पे उसने क्या काम किया था यार, द स्किपिंग सीन, यू नो जब पूरा टर्न होता है और जब उसका पूरा अभी बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, दैट शोज कि फरहान अख्तर कितना डीपली ही वेंट इनटू वर्किंग आउट. ही टुक दिस रोल सो सीरियसली कि Hmm. दैट वो जो उसका वो स्किपिंग सीन खत्म होने के बाद जो फरहान अख्तर का फिजिक है ना, दैट टेक्स years and years of hard work. Yeah. वो that shows the dedication and that shows the importance of the story, because Farhan Akhtar is actually a very method actor. Farhan Akhtar role में घुस जाता है. And the reason Farhan Akhtar decided, मतलब if you see normally Farhan Akhtar वो he's not like Hrithik, he's not like John Abraham की जो full time physics बना के six abs में चल रहा है. Hmm. He's a normal guy, but he did that for Baag Milka Baag. Shows कि कितनी अच्छी स्टोरी, कितनी impactful स्टोरी थी, that a guy like Farhan Akhtar decided कि no, if I'm doing this, I'm giving it 110% in everything. For sure, यार. And it showed. यार मुझे लगता है कि ना फरहान अख्तर आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम एज अ डायरेक्टर. ओके. दिल चाहता चाहता है, है. लक्ष्य, इवन द फर्स्ट डॉन वाज गुड. आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम एज अ डायरेक्टर. He ओके. is a very good director. He's a या very good director. जब एक्टिंग में आया ना तब आई फाउंड हिम टू बी अ डिसेंट एक्टर. रॉक ऑन एंड कार्तिक कॉलिंग Rock On was कार्तिक. decent. या ये सब मूवीज में Kartik इसको. Aaryan was decent, but Rock On was legendary movie, first मूवी movie. अच्छी थी बट उसकी एक्टिंग वाज नथिंग स्पेशल. Yeah, ये मूवी special. में भाग मिल्खा भाग में उसकी एक्टिंग जो रेंज दिखी है ना, आई वाज लाइक हैट्स ऑफ भाई. तू है मल्टी टैलेंटेड एक्टर है. यू कैन एक्ट, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, यू कैन डू Can do एवरीथिंग. everything. Bharat या. Akhtar can do everything. And I want to talk about Rakesh Om Prakash Mehra, the director of this movie. He is such a versatile, he is such a good director. He has also directed one of my favorite movies from Bollywood, Rang De Basanti. Rang And De Basanti. he directed Bhag Milkha Bhag also. And to take such a huge revered figure like Milkha Singh and make an entire story out of him is too good यार. एंड उसमें ना पता है मुझे बायोपिक्स का यूजुअली कैसा रहता है कि वाइट वॉश बहुत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉच संजू इन बॉलीवुड. ओके. संजू इज अ बायोपिक ऑफ द लाइफ ऑफ संजय दत्त, बट इट डजंट शो उसके ना रेजोल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाते हैं. भाग Very मिल्खा good. भाग इज एन एक्सेप्शन टू दैट कि अ, उसके ग्रे साइड भी दिखाया है.
उसके क्या बोलते हैं जब वो लैप्स इन जजमेंट होता है तब भी दिखाया है, एंड यू आर इन फॉर दिस जर्नी, एंड द एंडिंग इज अगेन सो हार्ट ब्रेकिंग यार वो। लव दैट मूवी। स्पीकिंग ऑफ हार्ट ब्रेकिंग बायोपिक्स, आई वांट टू टॉक अबाउट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। Oh, yeah, यार मतलब आई थिंक विल स्मिथ का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट? perfect आफ्टर performance. ऑस्कर वर्सेस क्रिस रॉक, उसका बेस्ट करियर परफॉर्मेंस वही रहेगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बट या Well, विल स्मिथ दी Chris Rock was not the pursuit of happiness, but या मुझे वो मूवी इतनी पसंद है ना यार। मतलब इट इज सच अ स्वीट फादर सन स्टोरी। sorry. More impactful because he took Jaden in that movie and या the chemistry was act true because actual father son is playing. या एंड जब जेडन स्मिथ को मूवी में देखा था ना, मुझे लगा था ओ दिस गाय कैन एक्ट। फिर मैंने देखा कराटे किड, आई वाज लाइक नोप, ही कांट। ही इज नॉट विल स्मिथ। And then he decided not to act forever. बेस्ट डिसीजन बाय हिम। But Pursuit of Happiness, yeah, such a sweet movie, such an inspirational movie. The scene where he sleeps in the restroom, paper towels लगा के नीचे वो और उसका बेटा दोनों सोते हैं यार, such a heartbreaking scene. Like, and you acting of Will Smith when he gets the job Oh, and cry, but he's controlling because he has to look professional and वो expression yeah. you can see it. You can see it in his eyes. You can see it in his face. कितना difficult है वैसा act करना without saying anything. Yeah, this is what a biopic should be, right? A Milkha Singh or Chris Gardner. You need to be inspired to be something in your life, यार. Uh, I love Pursuit of Happiness. मुझे याद है, स्पीकिंग ऑफ रॉक ऑन, मैं और एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? तो हमारे स्कूल के तरफ से लेके गए थे हमको एक थिएटर में मूवी दिखाने के लिए, एंड दे टोल्ड अस कि हमें परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस दिखाने वाला है, राइट? स्कूल से लेके गए थे। And हाँ, तो rock on लेके नहीं नहीं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखा, बट देयर वाज सम इशू विद द प्रोजेक्टर, ठीक है? एंड वही दिन पे रॉक ऑन रिलीज हुई थी, राइट? तो हम लोग को रॉक ऑन दिखाई एंड वी एंजॉयड रॉक ऑन, ठीक है? मुझे अभी भी याद है जब हम थिएटर से बाहर निकल रहे थे ना, मेरे एक फ्रेंड था मेरे साथ में, ही इज लाइक रॉक ऑन अच्छी मूवी है, बट आई विश दे शोड अस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, happiness. क्योंकि वो इतनी अच्छी मूवी थी कि नथिंग कम्स क्लोज टू इट। एंड years later when I watched that movie, I realized But that I he was think right. good that you watched it years later and not in school because as a kid you could have not understand that movie that deeply, Hmm. that much. Yeah. जब तुम कॉलेज या जब एडल्ट हो तब तुम्हें समझ जब थोड़ी रियल लाइफ दिखने लगती है and then you watch that movie you realize Yeah. what this world is and how difficult it is to make it. True, yeah. So, yeah. So these were our five genres that we selected for this episode, and we had a brief discussion about our favorite movies from the top of our heads. There are obviously more genres in movies, and And we will discuss soon. we will discuss in the future episode for sure. Uh, Please leave your favorite movies in comments related to your favorite genre, to which movie you like, and if we haven't seen it, we would definitely like to watch it. yeah. अंडररेटेड मूवीज बताओ ये जॉनर्स की कमेंट में, जो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी बट यू वांट पीपल टू वॉच दैट मूवी। So thank you so much for watching this episode. Thank you so much for the amazing response on the previous episodes. uh, Absolutely love you guys. Thank you so much. Take care.